بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں سب سے اہم تو میاں محمد نواز شریف ہیں۔ لگتا ہے کہ ان کی سیاست کو گرہن لگ گیا ہے۔ اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے آصف علی زرداری کی خواہش پر اور نئی حکومت کے خد و خال کے حوالے سے۔ میاں محمد نواز شریف جو 80 کی دہائی میں پاکستان کی سیاست میں انٹر ہوئے تھے اور ان کے جو استاد تھے جاوید ہاشمی، اور جاوید ہاشمی کے ساتھ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور تحریک استقلال سے کیا۔ پھر جنرل جیلانی کی توسط سے اور ان کی آشیرواد سے پھر یہ وزیر خزانہ بنے اور پھر 85 کی اسمبلی میں آئے اور پھر وزیر اعلیٰ بنے اور پھر تو ان کا سفر چلتا ہی چلا گیا۔ بہت سی کامیابیاں سمیٹی، بہت سی کامیابیوں کا انہوں نے کریڈٹ بھی لیا، بہت سے ایسے کاموں کا بھی کریڈٹ لیا جو ان کے نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کے دور میں ہوئے تو ان کا کریڈٹ بنتا بھی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے دور میں ہونے والے ہر اچھے کام کا کریڈٹ لے سکتے ہیں تو پھر اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی یا گڑبڑ ہوئی، کوئی غلط کام ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی آپ قبول کریں۔ جیسا کہ 98 میں جب ہم ایٹمی دھماکوں کی بات کرتے ہیں تو بڑے فخر سے میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ میں نے ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو۔ حالانکہ وہ 83-84 میں کلدیپ نیر نے جب ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ایک انٹرویو کیا تھا مشاہد حسین سید کی وساطت سے، جب وہ مسلم کے ایڈیٹر ہوتے تھے مسلم اسلام آباد کے، اور انہوں نے ایک انٹرویو کروایا تھا اور جس میں انہوں نے یہ ایک بات بتائی ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہ ہم تمام کولڈ ٹیسٹ کر چکے ہیں اور اگر کولڈ ٹیسٹ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائیں تو ایٹمی دھماکے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت 1983-84 میں بن چکا تھا۔ بہرحال اس کا کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر قرض اتارو ملک سنوارو نام کی جو ایک اسکیم آئی تھی میاں محمد نواز شریف نے شروع کی تھی ایٹمی دھماکوں کے فوراً بعد، اس میں کیا ہوا، اس میں لوگوں کا کتنا نقصان ہوا، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ہر اچھے کام کی ذمہ داری آپ اپنے اوپر لے لیں، اس کا کریڈٹ خود لے لیں، اور اگر کوئی غلط ہوا ہے، کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ دوسرے نے کیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہو یا پنجاب اسمبلی ہو، ان دونوں میں کسی پارٹی کو کوئی واضح برتری حاصل نہیں ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری ان دونوں کی بڑی معصومانہ سی خواہشیں ہیں۔ اب یہ دونوں اپنی اپنی زندگی کے اننگز تو کھیل چکے، اب وہ چاہتے ہیں کہ کیا ان کی اگلی نسل کس طرح آگے جا سکتی ہے۔ میاں محمد نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہتے ہیں اور آصف علی زرداری اپنے بیٹے بلاول کو اپنی زندگی میں وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ الیکشن سے 2 دن پہلے تک جو آخری روز جو انتخابی مہم چل رہی تھی، اس دن بھی بلاول بھٹو زرداری پاکستان مسلم لیگ پر گرجے برسے اور انہوں نے تیروں کی برسات کر دی، تیر برسا کے انہوں نے شیر کا شکار کر لیا، اور بار بار وہ کہتے تھے کہ اس شیر کو میں خون نہیں چوسنے دوں گا مزید۔ اب خون چوستا تو نہیں ہے شیر تو بڑے دھڑلے سے خون پیتا ہے، لیکن بہرحال وہ آہستہ آہستہ چوستے ہیں، لہذا آہستہ آہستہ وہ چاہ رہے تھے۔ لیکن بہرحال تو ایک نظریہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے، اور جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی ساتھ نہیں بیٹھیں گے، مجھے بہت نقصان ہوا ہے، ان کا یہ جو انہوں نے اپنا ایک اسٹانس لیا اور اس میں اپنی پوزیشن واضح کی، اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت سا وقت لگایا۔ اب باپ بیٹے میں اب کہاں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات پر متفق ضرور ہوں گے کہ اگر کہیں بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان میں کوئی بہت بڑی ذمہ داری ملتی ہے وزیر خارجہ، تو وہ بن گئے، ان کے نانا بھی بن گئے تھے، وزیر خارجہ بنے، پھر وزیر اعظم بنے، اب وہ بھی نانا کے نقش قدم پہ جانا چاہتے ہیں۔ یا ان کی والدہ کے جو دادا تھے سر شاہ نواز،
वो वजीर आजम रहे रामपुर की रियासत के, तो दीवान रहे वहां के। तो उससे पहले सर अब्दुल कादिर थे वहां के दीवान, और फिर ये दीवान कैसे बने सर शाहनवाज भुट्टो, ये तारीख में लोग जानते हैं। और अगर कभी मौका मिला तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह साजिशें करके उन्होंने सर अब्दुल कादिर को हटाया, उनको वहां से निकलवाया रामपुर से, जिनकी सिफारिश पर उन्होंने नौकरी हासिल की थी, और फिर उन्होंने उन्हें खुद को वहां बहैसियत दीवान या वजीर आजम इंडक्ट करवाया। तो ये थे सर शाहनवाज भुट्टो। तो इस वक्त वजीर आजम बनना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने जरदारी हटा के भुट्टो ही इसीलिए लगाया कि पाकिस्तान में अगर पीपल्स पार्टी को जीतना है तो भुट्टो के बगैर पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई हकीकी भुट्टो नहीं है। बहरहाल ये तो एक जरूरत थी उनकी, उन्होंने तब्दीली नाम में भी कर दी और जात में भी कर ली। लेकिन ये बात तय है कि आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को वजीर आजम बनाना चाह रहे हैं, और इस वक्त उनकी गुफ्तगू जो चल रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, तो इस वक्त जो तजावीज आई हैं या आ सकती हैं, उनमें जाहिर है 2.5 साल वजीर आजम एक पार्टी का होगा और 2.5 साल दूसरी पार्टी का होगा, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब इसमें पहले कौन करता है ये पता नहीं। मेरा मशवरा यह है कि पहले वजीर आजम अगर बनने का कोई प्रोग्राम है या बनता है तो कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो अपना नुमाइंदा ले आए, और उसके बदले पंजाब में मरियम नवाज को वजीर आला बनवा दें, क्योंकि उन्होंने तो सूबे को चलाना नहीं है, उन्होंने हंटर चलाने हैं, और उन हंटर चलाने की वजह से तो वफाकी हुकूमत भी जा सकती है। लिहाजा ये रिस्क नहीं लेना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी को कि वो दूसरे टर्म के लिए वजीर आजम की पोस्ट जो है वो एक्सेप्ट करें। दूसरे टर्म के लिए वजीर आजम की पोस्ट जो है वो जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ के पास जाए या शहबाज शरीफ के पास जाए, ये उन्हें मिलनी चाहिए। तो इस सूरत हाल में हमें क्या लगता है कि वजीर आजम कौन बनेगा? वजीर आला जहां तक पंजाब है तो पंजाब में तो वजीर आला जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। पीपल्स पार्टी की ऐसी अक्सरियत नहीं है, और ना ही भुट्टो खानदान का कोई उम्मीदवार ऐसा है जो वजीर आला बन सके। लिहाजा वजीर आजम के लिए ही वो फोकस करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो वादे कहां गए, वो वईद कहां गए जो उन्होंने किए थे कि पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी कौम है, वो इंसान है या कोई कीड़े मकोड़े। जहां तक ताल्लुक है सियासत का और इंतखाबात का, मौजूदा इंतखाबात में जो कुछ हमने देखा 8 फरवरी के बाद, नतायज जिस तरह रात के अंधेरे में तब्दील हुए और वोटर निकले लाखों की तादाद में, उन्होंने वोट डाले, 1-1 लाख वोट डाल दिए, किसी की 1 लाख वोट कम हो गया, किसी की 1 लाख वोट इधर हो गया, किसी की 1 लाख वोट उधर हो गए। तो ये रात में ही हुए। दिन में जो पोलिंग का टाइम था उस वक्त तक तो बहुत बेहतर था, सब कुछ बेहतर चल रहा था, और अचानक से गड़बड़ हुई और सब तबाह बर्बाद होकर रह गया। अब जब ये सब कुछ हुआ तो उसमें बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। अगर हम परवेज खटक साहब की बात करें, परवेज खटक साहब को बड़ा जोम था, मान था, फख्र था, गुरूर था कि मैं केपीके में मैं ही पीटीआई को लाने वाला था और मैं ही उसे बर्बाद कर दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जिनके जवाब में वो शेर अफजल मरवत ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था तो उन्हें गन्ना ला के दे, वो गन्ना नहीं तोड़ सकते, पीटीआई का तोड़ेंगे। तो अल्लाह ने उन्हें उसकी जो गुरूर करने की सजा थी वो दे दी, और वो अपने हलके से, अपने जिले से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए, पूरे खानदान समेत बाहर हो गए। इसी तरह जेकेटी जहांगीर खान तरीन, जिन्होंने आईपीपी बनाई, उनकी सियासत भी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि वो अब सियासत से अलहदी अख्तियार कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम ये देखें कि इस वक्त रद्द अमल क्या आ रहा है, बैनुल अक़वामी तौर पर तो रद्द अमल आ रहा है, उसमें तो फोकस एक ही जुमले पर किया जा रहा है कि इमरान खान को पसंद नहीं करती पाकिस्तानी फौज, लिहाजा उनके नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं है कि अवाम उन्हें वोट देते हैं या नहीं देते। ठीक है, अगर पाकिस्तान की कॉस्ट पर लोगों के अकीदे और नजरियात और उनकी जिदें चलती हैं तो चलने दें। अब जब पाकिस्तान ही ना रहे, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक,
तो फिर कहां सियासत करेंगे ये लोग, फिर तो जूते ही खा रहे होंगे लोग। तो बहरहाल ये एक अलग सी कहानी है। तो इस पर एहतजाज जो बैनुल अक़वामी तौर पर चल रहा है वो तो अलग है, जो अखबारात छप रहे हैं, इकोनॉमिस्ट में छपा, जो ब्लूमबर्ग में छपा, वाशिंगटन पोस्ट में छपा, उनकी तो बात ही कोई और है। कुछ नहीं कर सकते हम कि वो खुलकर लिखते हैं, क्योंकि वो ना तो किसी दबाव में आते हैं और ना ही उन्हें बंद किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सियासी रहनुमा है वो अपने तई एहतजाज कर रहे हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम ने आज अपनी नशिस्त को छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है PS 125 पे उन्हें जितवाया गया था। उन्होंने कहा मुझे जितवाया गया है इस पर, हालांकि मुझसे ऊपर जो थे, मुझसे ज्यादा जो फॉर्म 45 के मुताबिक मुझसे ज्यादा PTI के आजाद उम्मीदवार के वोट थे और मैं किसी का हक नहीं ले सकता। और इस तरह के बहुत सी मिसालें हमारे पास आई हैं। फिर सिंध हाई कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो आज सिंध हाई कोर्ट में कराची से कौमी और सूबाई असेंबली की 30 से ज्यादा नशिस्तों के लिए लोगों ने दावे दायर कर दिए हैं, पिटीशन दायर हो गई हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो गए हैं। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इन्होंने जिस समाअत की थी इस केस की, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि ये क्या है। उन्होंने जब आए बाएं शाएं करने लगे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, अगर आप स्मार्ट बने तो इसकी सजा फिर आपको भुगतनी पड़ेगी। जहां एक तरफ हाफिज नईम की बात हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आलमगीर खान ने कहा कि जी मेरे 1 लाख वोट कम करके मुझे 1000 पे लाख खड़ा कर दिया। अजीब बात है कि ये जो लाखों का हेर फेर हुआ कराची में, 3-3.5 लाख वोट जो थे इधर उधर हुए, असल में होता यह है कि जल्दी में अगर कोई वोट तब्दील करे या प्लस माइनस करे तो एग्जैक्ट फिगर तो हो नहीं सकती ना कि जी मजमूई वोट उतने रहे, तो मजमूई वोट भी गड़बड़ हो सकते हैं और फिर सब कुछ हो सकता है। अच्छा, जो आवाजें उठ रही हैं उन आवाजों में जो एक चीज जो बहुत अहम आज अभी शाम में हुई आज, कि जी पीर साहब पागारा ने ऐलान किया है कि जी वो 16 फरवरी को एहतजाज करेंगे इस इलेक्शन के खिलाफ। उनके बकौल पीर साहब पगारा के कि उन्हें पैगाम भिजवाया गया था एक दोस्त के जरिए, या एक दोस्त ने उनसे कहा, कहने का मतलब तो ये उन्होंने यही कहा कि मुझे एक दोस्त ने कहा कि आप GDA बंद कर दें, छोड़ दें GDA को, आप जरदारी के साथ इत्तेहाद कर लें और आपकी जो सीटें हैं वो मुस्लिम लीग फंक्शनल की आपको मिल जाएंगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके सामने 0 लगा हुआ है और MKM के सामने 15 लिखा हुआ है। अब ये अजीब बात है कि एक साहिब इख्तियार पॉलिटिशियन, एक बहुत मजबूत आदमी, उसे इस तरह पैगाम दिया जाए और फिर बाद में वो साबित भी हो जाए, तो उसके बाद क्या बात हो सकती है, क्या हम कह सकते हैं। और पीर साहब पगारा ने एक बहुत पते की बात कही जो हमारे मुल्क में लोग नहीं कहते। इस्टेब्लिशमेंट से उनका बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है, उनके वालिद का बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो नताए तब्दील हुए ना, इसमें तो RO और AROs की तो औकात ही नहीं है, उनके वो नहीं कर सकते, उनकी औकात ही नहीं, हैसियत ही नहीं है, ये कहीं और से हुए हैं और कहीं और का मतलब हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद कोयटा में आज एक धरना हुआ, वो भी पाकिस्तान की 3-4 नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, इन चारों पार्टियों ने जो एहतजाज किया, उन्होंने इलेक्शन की बेकायदगियों पर जो है एहतजाज किया। और उन्होंने कहा जो नताइज हैं फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो इशू कर दिए जाए, नताइज हमें कोई मसला नहीं। अब इसी दौरान में जब इतना ज्यादा शोर हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने 27 नशिस्तों पर नताइज रोकने का हुक्म दे दिया है कि फिलहाल उनके नताइज का ऐलान न किए जाए। फिर अहमद वली खान ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर जो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक बयान दिया आज। उन्होंने कहा कि जी ये गूंगे बहरे लोग लाए गए हैं जानबूझकर असेंबलियों में, बलूचिस्तान में और KPK में, ताकि ये लोग बात न कर सकें और सियासी तौर पर बाशऊर और सियासी रहनुमाओं को असेंबलियों से बाहर कर दिया गया है। ये कौन कर रहा है, किसके ईमा पर हो रहा है, किस लिए हो रहा है और इसके पसे पर्दा मकासद क्या है, ये सब हमारे सोचने की बात है कि हम अगर सोचेंगे तो आगे चलेंगे। लिहाजा हमें सबको सोचना है और इस पर एहतजाज करना है, हमें इसके मुतालिक आवाज उठानी है इस पर कि ये ठीक काम नहीं है।
जब सब हर तरफ से एहतजाज की सदाएं बुलंद हो रही हैं तो कराची में JUI के कारी उस्मान ने भी इंतखाबात को कहा, इंतखाबात के बारे में कहा कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख पर बदनुमा दाग हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो खामोश है, वो कुछ नहीं करना चाह रहा, वो कुछ कर नहीं रहा। क्या करना चाह रहे, लेकिन उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। बहरहाल, तो अगर उनके इख्तियार में नहीं है तो उन्हें, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो इस्तीफा दें और घर चले जाएं। लेकिन जूता पड़ा उन तमाम लोगों के मुंह पर, उन तमाम लोगों के मुंह पर जो लोग भी इस सारे खेल का हिस्सा थे, लोगों की तज़हीक करना चाह रहे थे, तजलील करना चाह रहे थे, ये सब समझते हुए कि ये इज्जत और जिल्लत किसी इंसान के इख्तियार में नहीं होती, ये रब्बे ताला के इख्तियार में। मिसाल मैं आपको दूं कि जैन कुरैशी, जो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, उन्हें इंतखाबी निशान दिया गया बूट, और वो जूते ऐसे पड़े कि अब तो लोगों को नानी याद आ रही होगी। बहरहाल, हमारा जो सफर शुरू हुआ था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात से कि जी उनकी सियासत को ग्रहण लग गया है, उनकी सियासत जो मौजूदा दौर में शुरू हुई वोट को इज्जत दो से, फिर नोट को इज्जत दो पर आ गई है इस वक्त, और आखिर में तो अब वो बूट को ही इज्जत दे रहे हैं। हमारे सियासी रहनुमाओं को ये सोचना है कि क्या वो सियासत करेंगे या इस मुल्क में इस निज़ाम की गुलामी करेंगे। इस निज़ाम की गुलामी पाकिस्तानी अवाम जो है वो नहीं कर रहे। अब नौजवान जो 8 फरवरी को बाहर निकला, जिस तरह बाहर निकला, उसकी बात कुछ और है, और वो एक सबक दे गया है कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब हम अपना वोट जरूर डालेंगे, और हमारा वोट ही हमारी ताकत है, और यही ताकत है जो पाकिस्तान को तरक्की की जानिब ले जा सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।